Good morning, everyone. Yes, am I audible? Yes, guys, am I audible? Okay, ठीक है. And I hope so. Screen is also visible to you all. Okay, ठीक है. चलो. So in last lecture, we had started with networking का concept, actual networking concept, in which we have seen some of the types of telecommunication network depending on some criteria such as area coverage base, that is LAN, MAN, WAN, that particular part we have seen. Even after that we have seen functional based criteria in which client server architecture and peer to peer architecture we have seen. Okay. Similarly, in ownership base, we have seen three more criteria, three more types of networks, that is public network, private network, and then virtual private network. So these three different types of categories we have seen, and we have been exploring all those particular types of network in which I hope so कि LAN का concept, LAN, MAN, WAN क्या होता है, ये part हमने कर लिया है. Okay. After that, even we have started with this client server architecture, जिसमें what exactly a client is, what is server, ये भी हमने किया. So client में basically it is classified in three types, that is as you can see on the screen, that is fat or thick client, thin client, and hybrid client. Okay. हर एक का हाइब्रिड इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ थिक एंड थिन क्लाइंट, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. बट थिक क्लाइंट एंड थिन क्लाइंट, सो लेट मी जस्ट टेल यू. थिक क्लाइंट मतलब क्या, तो जो नॉर्मल आपके घर पे जो सीपीयू होता है ना, तो उसको आप थिक क्लाइंट बोलते हो, क्योंकि उसमें अगर आप देखोगे तो सीपीयू का खुद का प्रोसेसिंग ऑपरेशन जो भी है, प्रोसेसिंग पावर जो है वो सब खुद करता है, वो सर्वर पे डिपेंडेंट नहीं होता. तो आपके घर पे जो पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप अगर आप बोलोगे, तो वो उसके पास उसका खुद का मेमोरी होता है, उसका खुद का व्हाट वी कैन से स्टोरेज प्लेस होता है, सब कुछ खुद का होता है. एंड इसीलिए वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ थिक क्लाइंट. थिन क्लाइंट के बारे में अगर बात करेंगे तो थिन क्लाइंट इज बेसिकली द क्लाइंट which is totally dependent on the server. So whatever applications are you need to use, so that applications need to be installed on server. आप सर्वर पे इंस्टॉल करोगे so that थिन क्लाइंट पे आप उसको ऑटोमेटिकली यूज कर सकते हो. इवन thin client are not able to unable to store any data also. Whatever work you are going to do, whatever data you want to store, that will be stored only on the server. खुद का प्रोसेसिंग पावर भी नहीं होता. एंड यस, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स. ये हमने लास्ट लेक्चर में किया ऑलरेडी. then we have seen server, what exactly a server is. So server is typically a powerful computer which is used for establishing a network operating system. Okay. So server is the one who validates the login to the network, and it can deny the access to a particular client also. So server basically controls all the communications and sharing of resources, process करना, execution करना, all those particular things will be carried out only through the server. And one more चीज एक हमने देखा, that is about the middleware. So middleware is uh, the thing which allows the communications or directory services, queue करना, file share करना, resource. So it is basically the mediator between client and server. So client server टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो आप यूज करते हो, दैट इज नोन एज अ मिडलवेयर. ओके. Now we have also seen some of the characteristics of client server architecture, जहाँ पे service, yes, तो client server architecture provides a clean separation of function based on idea of the service.
So the service is a provider of a service. Server is the provider basically in client server architecture. Server is the king. मैंने last time भी ये बोला था. Even the next characteristic is that is about the shared resources. Yes, sir. By using server, what you can do? You can share all the resources to any of the client. So whenever a particular client wants to access a particular resource, whether it is a printer हो या कोई database हो, एक कोई file हो, तो whatever thing that particular client is required, so server is going to provide those particular peripherals or some of the files or any such thing to that particular client. Okay, so resource आप share कर सकते हो. Then yes, scalability. Yes, scalability मतलब क्या? तो आपका जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है वो आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो. दैट मीन्स वॉट एवर नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर देयर इन यूर नेटवर्क. फॉर एग्जाम्पल अभी आपके घर पे जस्ट इमेजिन एक सर्वर है आपके पास एंड आपने ना 3-4 और भी कंप्यूटर्स उसको अटैच कर दिए. नाउ ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि जस्ट इमेजिन स्टार्टिंग में एकदम बिगिनर हो आप, आपका नया नया ऑर्गेनाइजेशन है, तो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रहेंगे, ज़्यादा काम नहीं रहेगा आपके पास. सो व्हाट यू डू, तो एक सर्वर लिया और 10 कंप्यूटर्स है उनको आपने अटैच कर दिया, आपने आपका नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिया. नाउ द थिंग इज, जैसे ही आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होना स्टार्ट होगा, देन डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्क स्टेशंस इन योर कंप्यूटर नेटवर्क. आप क्या कर सकते हो, इजीली उसको ऐड और रिमूव कर सकते हो. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्केलेबिलिटी. आप स्केल अप या स्केल डाउन इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. नेक्स्ट वन इज दैट इज अबाउट द इंटीग्रिटी. यस, यहाँ पे एक्सेस जो होता है वो सिर्फ ऑथराइज यूजर्स जो है उनको ही दिया जाता है. सो सर्वर विल ऑलवेज चेक फॉर द ऑथराइज यूजर. अगर आप क्लाइंट मशीन पे बैठे हो वहाँ पे आपको लॉगिन रहेगा. लॉगिन अगर आप लॉगिन पासवर्ड अगर आप वैलिड डालते हो तो ही यू विल गेट द एंट्री टू यूज दैट पर्टिकुलर मशीन. अदरवाइज इट वोंट अलाउ यू टू यूज द मशीन. सो ऑथराइज एक्सेस जो रहेगा उनको ही एंट्री मिलता है. एंड दैट्स हाउ वी कैन मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा एंड द सॉफ्टवेयर ऑल्सो. And the last feature they have given, that is about mix and match. So in CS software, that is in client server architecture, software is basically independent of hardware or operating system. So whatever देखो client का कुछ रोल ही नहीं होता, आपका जो मेन है वो सब सर्वर के ऊपर ही होता है. तो सर्वर इज द वन इन विच इम्पोर्टेंट हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर विल बी देयर. एंड फिर उसको आप डायरेक्टली सिर्फ यूज करते हो थ्रू अ पर्टिकुलर वर्क स्टेशन. So this is what the basic of client server architecture is. So जैसे कुछ फीचर्स है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के, दैट इज आप इंटीग्रिटी मेंटेन कर सकते हो, स्केलेबल है, आप रिसोर्सेज शेयरिंग कर सकते हो. बट उसके साथ और एक यहाँ पे इश्यूज है, दैट इज ड्रॉबैक आप बोल सकते हो. दैट इज क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सर्वर इज द किंग. यस, बट अगर सर्वर ही खराब हो गया आपका, then what you will do? So when server goes down or crashes, then entire network is down. So दूसरा जो भी वर्क स्टेशन है ना, जो भी क्लाइंट है वो कोई भी कुछ काम का ही नहीं है. सर्वर ही नहीं चल रहा है तो बाकी क्या चलेगा. सो ये एक इशू हमेशा आता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में. एंड इवन जब भी आप साइमल्टेनियस डेटा एक्सेस देते हो मल्टीपल यूजर्स को, देन डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट अकर हो सकता है. ओके, सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट इश्यूज विच वी आर गोइंग टू फेस व्हाइल यूजिंग द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क. सो आई होप ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग सिस्टम जो है ये आपको समझा रहेगा. क्विकली विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट पीयर टू पीयर नेटवर्किंग. इसको शॉर्ट में बोला जाता है P2P, मतलब पॉइंट टू पॉइंट ऐसे भी उसको बोलते हैं. सो बेसिकली पीयर टू पीयर मतलब क्या, तो 1 to 1. So peer to peer network is created with 2 or more PCs connected together and share resources without going through a separate server. तो बेसिकली P2P जो नेटवर्किंग है इसमें आपको सर्वर की जरूरत नहीं है. मल्टीपल PCs are directly connected with each other, and that's why here the computers are called as a peers, because
each one can alternately act as a client to another peer fetching its content and as a server. So यहाँ पे देखो अलग से सर्वर की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे सपोज 4 कंप्यूटर्स है, 5 कंप्यूटर्स है, वो सब एक दूसरे को आपने कनेक्ट कर दिए, तो जब भी आप कुछ डेटा शेयर करते हो या जो भी आप कुछ काम करोगे, तो ये पांचों में से कोई एक जो है ना वो एट अ टाइम सर्वर बनेगा एंड फिर बाकी का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। सो यहाँ पे अलग से सर्वर की आपको जरूरत नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम इज कॉल्ड एज नो डेडिकेटेड सर्वर सिस्टम। यहाँ पे सर्वर होता नहीं है। ये जितने भी कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, उसमें से एक कोई भी एक फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम बीइंग सर्वर बन जाता है एंड वॉट एवर एक्शंस दे नीड टू कैरी आउट वो परफॉर्म किए जाते हैं। अब इसमें एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज सबसे पहला क्या है कि एज देयर इज नो सर्वर, तो जो कॉस्ट है वो डिक्रीज होगा डेफिनेटली। देन P2P आर इजी एंड सिंपल टू सेटअप, क्योंकि सिर्फ जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल है उनको सिर्फ क्या करना है, आपको एक दूसरे से कनेक्ट करना है। एंड वो कनेक्टिविटी के लिए यू आर डेफिनेटली गोइंग टू यूज सिर्फ हब और स्विच, इतना ही आप यूज करोगे। बाकी आपको जो भी डिवाइसेस है या कार्ड्स है वो आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ पे और एक है, दैट इज यहाँ पे अगर समझो हमने अभी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में एक चीज देखा था, दैट इज कि सर्वर इज द किंग। तो सर्वर अगर क्रैश होता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका कोलैप्स हो रहा था। नाउ सिमिलरली यहाँ पे आपके 5 कंप्यूटर्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज 5 कंप्यूटर्स है P2P कनेक्शन में। नाउ उसमें से एक कंप्यूटर अगर क्रैश होता है तो बाकी के कंप्यूटर्स विल बी देयर इन नेटवर्क एंड वहां पे उनका प्रोसेसिंग चलते रहेगा। ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। Dedicated server is not there, and because of that failure of any computer will not bring down the entire network, and that's why it is what we can call it as, देखो बहुत सारे जगह पे मोस्टली क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही यूज किया जाता है, P2P बहुत कम यूज किया जाता है। बट द थिंग इज एज पर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू, एज यू कैन सी कि P2P के बहुत सारे एडवांटेज है। ये नेटवर्क कभी ब्रेक डाउन नहीं होगा एंड इवन वॉट एवर डेटा ट्रांसफर यू आर गोइंग टू परफॉर्म वो डायरेक्ट होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर ना। सो डेटा आप ट्रांसफर करोगे तो डायरेक्टली होगा। इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैसे ट्रांसफर होता था, तो क्लाइंट ने अगर कुछ सेंड किया तो वो पहले जाएगा सर्वर पे, सर्वर चेक करेगा किसका है तो उसको वो सेंड करेगा। सो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में डेटा ट्रांसफर जो है वो वाया होता था, दैट इज क्लाइंट सेंड करेगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर फिर सेंड करेगा बैक टू दैट पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। बट इन दिस केस P2P there is no need to do such data transfer. Directly you can transfer the data from one PC to another PC. Okay, now we'll talk about some of the disadvantages. So as you can see, yes, केबल कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा लगेगा क्योंकि डायरेक्ट आप कनेक्शन कर रहे हो, कंप्यूटर्स को डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। सो येस, केबल कॉस्ट विल इंक्रीज, बट डेफिनेटली एक एडवांटेज ये भी है कि सर्वर की ज़रूरत नहीं है एंड सर्वर का कॉस्ट इज़ टू मच। अगर हम छोटे से छोटा सर्वर भी अगर लेने जाएंगे, फॉर एग्जांपल अभी मैं अपने लैब के बारे में आपको बताता हूँ। सो इफ व्हेन इट कम्स, अगर एक सिंगल पीसी हम लोग परचेस करते हैं, सो मैक्सिमम कितना 30,000 40,000 रुपीज़ आप पे करते हो। घर का कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। सो थिन क्लाइंट होते हैं तो थिन क्लाइंट का और भी रेट थोड़ा कम होता है। बट व्हेन इट कम्स टू द सर्वर, सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग रहता है, उसका हार्डवेयर अलग होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट एक सिंपल सर्वर भी अगर आप परचेस करने जाओगे ना, जो जस्ट इमेजिन 20 to 30 पीसीज को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके, तो ऐसे सर्वर का कॉस्ट है अराउंड 1.5 लाख to 2 लाख। वो दिखने में आपको कंप्यूटर ही दिखता है, जस्ट द थिंग इज उसका जो सीपीयू होता है ना, वो सीपीयू बहुत हेवी एंड बहुत बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके ऊपर बाकी सब मशीन्स चलने वाले हैं ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्डवेयर होता है, बहुत सारे अलग अलग पेरिफेरल्स होते हैं।
सो उसका कॉस्ट तो ज़्यादा होता है। बट इन केस ऑफ P2P, यस वी नो नीड, देयर इज नो नीड टू हैव अ सर्वर, सो उसका कॉस्ट आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। देन इनके वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ P2P इज दैट इज अबाउट द डेटा सिक्योरिटी। यस, क्योंकि आप यहाँ पे डेटा जो है ना वो आप डायरेक्टली पास कर रहे हो फ्रॉम वन पीसी टू अनदर पीसी, and here anyone can come and use that particular machine. So there is no such authorization technique which we are using to secure our computer or our network. So that's why problem, यहाँ पे एक problem आएगा, that is about the data security. Okay, so I hope ये P2P जो networking system है ये भी आपको समझा रहेगा। चलो जल्दी बोलो। Yes. Yes, you are getting my voice or not? अरे no one is replying. What is happening? Okay, चलो ठीक है। And screen is also visible, no? Because I am not able to see the screen right now. Okay, चलो ठीक है। Now the next architecture, अभी हमने देखो CS that is client server architecture देखा, P2P देखा। Now we will see multi-tier architecture. अब इसमें दो टाइप्स है, that is 2 tier and 3 tier. Now as the name suggests 2 tier and 3 tier, तो इसमें से आपको पता चल जाएगा कि what exactly this architecture is all about. So you can see 2 tier architecture consist of a client and a server. So basically 2 tier architecture and client server architecture जो है ना दोनों सेम ही होते हैं। Okay, here a database is stored on the server. The interface and applications used to access the database is installed on the client. So ये एक टाइप का क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ही है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन काम जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो सर्वर कुछ काम करता है एंड क्लाइंट को कुछ काम करना पड़ता है। सो यू कैन सी हियर कि इन दिस 2 टायर आर्किटेक्चर सर्वर इज द वन जिसके पास ना डेटाबेस होता है पूरा, एंड क्लाइंट इज द वन जिसके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं या एप्लीकेशंस होते हैं जिसके थ्रू वो डेटाबेस को यूज करता है। सो दिस पर्टिकुलर मॉडल इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड बिकॉज complicated applications can be developed in comparatively short time. So यहाँ पे basically क्या किया जाता है, whatever applications or interfaces you want to use for performing a operation, those particular applications will be installed on client machine. तो हर client machine के पास अपना अपना जो भी application है वो वहाँ पे रहेगा, and if they want to use the database, then they will request for that particular database access to the server. So this is the only difference between client server architecture and 2 tier architecture. Now the next one, that is about 3 tier. तो यहाँ पे 3 जन रहेंगे, कैसे? तो as you can see this consists of client differently, application server differently and data server. So यहाँ पे देखो, अब हमने जो ऊपर के आर्किटेक्चर में देखा तो वहाँ पे क्या था, सर्वर इज द वन हु इज स्टोरिंग द डेटाबेस इनसाइड इट। नाउ हियर अब डेटाबेस को स्टोर करने के लिए ही एक अलग से सर्वर है, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ गया। सो दिस पर्टिकुलर आर्किटेक्चर एज द नेम सजेस्ट 3 टायर, तो 3 जन है यहाँ पे, क्लाइंट है, सर्वर है एंड डेटाबेस को स्टोर करने के लिए डेटा का सर्वर है। सो इन दिस आर्किटेक्चर interface is installed on client, applications used to access the database is installed on new tier, that is whatever their application server is, तो उसके ऊपर, and the last one whatever database you have वो database आप store करोगे on data server. So that's why 3 tier architecture इसको बोला जाता है, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर आप सॉफ्टवेयर या इंटरफेस जो है वो आप इंस्टॉल करोगे, सर्वर जो है उसके ऊपर डेटाबेस एक्सेस करने के लिए जो सॉफ्टवेयर लगेगा उसको इंस्टॉल करोगे, एंड डेटा सर्वर जो है उसके ऊपर आप पूरा का पूरा डेटाबेस माउंट कर दोगे। सो दैट इज व्हाट 3 टायर आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट। सो यहाँ पे हमने ये जो नेटवर्किंग का कंसेप्ट था
जिसमें ओनरशिप बेस फंक्शनल बेस नेटवर्किंग के टाइप्स थे, दैट इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर एंड मल्टी टायर आर्किटेक्चर। ये पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ वी विल मूव to the next part, that is about the topology. So just we will go to that particular part. Yes, network topology. Now what do you mean by this topology? तो yes, network is there definitely कि कंप्यूटर नेटवर्क का ही एक पार्ट है। तो टोपोलॉजी का मीनिंग क्या है? तो टोपोलॉजी का मीनिंग इज स्ट्रक्चर, कि जो भी आप नेटवर्क इस्टेब्लिश करोगे तो वो कौन से स्ट्रक्चर में कैसे अरेंजमेंट आप करने वाले हो। सो बेसिकली नेटवर्क टोपोलॉजी इज व्हाट? इट इज द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेस। आप कंप्यूटर रिसोर्सेस कैसे एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हो, जो भी रिमोट डिवाइसेस है, जो भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, उनको आप कैसे अरेंज कर रहे हो, कैसे आप कौन से स्ट्रक्चर में उनको आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो, दैट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। एंड हियर मल्टीपल different types of topologies are there. So as you can see, the first one, star topology or star network. I will just show you, ये देखो। So here is the diagram they have given regarding the star topology or star network. So as you can see, why this particular topology is known as star? क्यों? क्योंकि उसके arrangement से ही आपको दिख रहा है। So as per the arrangement you can see it consists of centralized computer system. तो सेंटर पे एक मेन कंप्यूटर सिस्टम रहेगा, फ्रॉम विच वेरियस अदर कम्युनिकेशन चैनल्स वेर ओरिजिनेटेड। सो ये जो सेंट्रल पे आपको जो एस दिख रहा है ना, सो दैट एस विल बी कंसिडर्ड एज सर्वर एंड हब। ये डिवाइस का यूज करके आप क्या कर रहे हो, बाकी जितने भी वर्क स्टेशन है या नोड्स है उनको आप कनेक्ट कर रहे हो। सो ये जो आर्किटेक्चर है या ये जो अरेंजमेंट है, इट लुक्स लाइक स्टार जैसे दिख रहा है ना ये, एंड दैट्स व्हाई this particular topology or this type of arrangement of computer is known as star topology. Here nodes are connected to hub and hub is connected to the central computer. Now if I talk about the advantages, तो yes, ये establish करने के लिए, मतलब ये जब arrangement आप करते हो ना, it is very easy to do the arrangement. तो अगर आपको कोई नोड ऐड करना है या कुछ रिमूव करना है तो इट इज़ वेरी इजी। एंड इवन एज यू कैन सी कि अगर एक नोड यहाँ पे फेल भी होता है, फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि एक बीच में सेंटर में सर्वर है एंड 4 नोड्स कनेक्टेड है, तो अगर चारों में से एक नोड भी अगर उसका फेल्यूर होता है ना, तो भी बाकी का जो आर्किटेक्चर है, बाकी का जो नेटवर्क है, ये चलते रहेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एंड इवन because of such scenario, such arrangement, it is easier to diagnose the network problem also. So जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो भी आप इजीली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। बट the biggest disadvantage of this particular type of arrangement is what? As you can see, all the computers, all the nodes are connected to a centralized server. So अगर सर्वर ही आपका डाउन होता है या फेल्यूर होता है, देन पूरा का पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। एंड इवन एज यू कैन सी बहुत सारे अलग अलग नोड्स जब आप ज्वाइन करते हो हब के साथ, हब को ज्वाइन करना है सर्वर के साथ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे केबल्स लगेंगे आपको, एंड बिकॉज ऑफ दैट केबल कॉस्ट इज मोर इन दिस पर्टिकुलर स्टार टोपोलॉजी। सो आई होप ये स्टार टोपोलॉजी आपको समझा रहेगा। ऐसे अभी बहुत सारे टोपोलॉजीज है, वो हम एक देखेंगे। जस्ट क्विकली गिव मी द कंफर्मेशन, स्टार टोपोलॉजी समझा आपको? पहले तो टोपोलॉजी क्या है समझा ना? टोपोलॉजी इज व्हाट? इट इज एक्चुअली ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, कि कंप्यूटर आप कैसे नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ, ओके। एंड उसके बाद हमने स्टार टोपोलॉजी देखा। जस्ट गिव द क्विकली कंफर्मेशन, ओके। चलो स्टार टोपोलॉजी के बाद नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट बस नेटवर्क, दैट इज नोन एज द बस टोपोलॉजी। सो इट इज लाइक अ बस। नाम क्यों दिया है? कि वो दिखने में ना बस जैसा लगता है। अब बस जैसा मतलब आप बोलोगे सर कुछ भी क्या फेंकते हो, ये क्या थोड़ी बस है? तो बस नहीं, तो सीरियल ऑर्डर में देखो, बस में हम लोग बैठते हैं तो सीट्स जो होते हैं कैसे होते हैं,
सीरियल ऑर्डर में होते हैं। इवन बस में जब हमको चढ़ना होता है तो उसके लिए क्यू लगाते हैं, है ना, एंड वन बाय वन आप जाते हो। सो इट इज लाइक कि ये इसको बस क्यों बोला जाता है, बिकॉज इन दिस स्ट्रक्चर whatever networking cables are there, only single network cable will be there. So you can see वो नीचे जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है ना, वो एक ही सिंगल केबल रहेगा, एंड बीच बीच में multiple nodes will be linked with that single communication line. ओके, सो सिर्फ कम्युनिकेशन लाइन यहाँ पे सिर्फ एक ही होने वाला है। just the thing is multiple nodes will be connected to that communication line. So it will be like कि इसको देखो, बस नेटवर्क को अगर मैं समझाने जाऊँ ना तो इसको और इजियर वे में कैसे समझा सकता हूँ। जस्ट इमेजिन एक वाटर पाइपलाइन इज देयर, जिसमें से पानी आ रहा है। अपने बिल्डिंग में भी वही होता है कि एक मेन लाइन होता है जिसमें म्यूनिसिपालिटी से आपके घर के यहाँ पे आपके बिल्डिंग में पानी आता है। देन हर घर को जब आपको पानी देना है तो व्हाट यू डू कि एक लाइन मेन होता है, एंड फिर बीच बीच में हर घर के लिए आप उधर से बीच से एक एक पाइप डाल देते हो उस मेन पाइप लाइन के अंदर, सो दैट यू विल गेट दैट पर्टिकुलर वाटर। सो सिमिलरली वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया जाता है कि मेन कम्युनिकेशन लाइन विल बी देयर, ओनली सिंगल कम्युनिकेशन लाइन विल बी देयर, एंड उसको बाकी के जो नोड्स है एंड सर्वर है वो सब कनेक्ट किए जाते हैं। सो यू कैन सी बेसिकली, अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो तो डायग्राम से समझ में आएगा। एज यू कैन सी एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस कम्युनिकेशन लाइन यू कैन सी वन सर्वर, जो एस लिखा है ना वो सर्वर है, एंड बाकी के नोड्स आर देयर। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन कैसे होता है, सो इफ anyone wants to send a particular message to any of the node, what will happen, तो ये सर्वर के पास जाएगा, एंड सर्वर वो जो मैसेज है वो सबको सीरियल ऑर्डर में भेजते जाएगा। सो यहाँ पे होगा क्या, दैट इज समझो अभी 100 पीसीज आर कनेक्टेड इन बस नेटवर्क में। अगर 100 पीसीज है तो अगर फर्स्ट कंप्यूटर ने मैसेज सेंड किया एंड उसको मैसेज सेंड करना है 100th वाले पीसी के, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, तो ये जो मैसेज है ना ये हर नोड पे जाएगा, एंड फाइनली एट द एंड वो 100th वाले नोड पे जो पीसी है ना उसको जाके मिलेगा। सो इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम। सो कुछ एडवांटेजेस आर देयर डेफिनेटली, बट डिसएडवांटेजेस आर आल्सो हियर। सो क्या क्या एडवांटेजेस है, तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे एक एडवांटेज है, दैट इज अबाउट रिड्यूस इन केबल कॉस्ट। ज़्यादा केबल्स आपको नहीं लगेंगे क्योंकि एक सिंगल केबल आप यूज कर रहे हो फॉर कम्युनिकेशन, एंड रेस्ट इज फॉर जस्ट फॉर दैट कनेक्शन पर्पज। सो कम्युनिकेशन के लिए ओनली सिंगल केबल यू आर गोइंग टू यूज, सो केबल कॉस्ट इज रिड्यूस, दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। देन यस, इट इज रिलायबल इन वेरी स्मॉल नेटवर्क सिस्टम, जहाँ पे बहुत सारे कम पीसी है, मतलब 4, 5, 10 पीसी को ही आपको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। तो इन सच सिनारियो यू कैन यूज दिस बस नेटवर्क। बट जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 100 कंप्यूटर्स आर देयर, एंड वो अगर एक दूसरे से कनेक्ट करने आपको, एंड बस आपने यूज किया, देन बहुत टाइम लगता है कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वो मैसेज जब आप सेंड करोगे ना वो हर नोड पे जाते बैठेगा, वो डायरेक्टली 100 के नोड पे नहीं जाएगा, वो सीरियल ऑर्डर में उस पाइपलाइन के जैसा वो वायर के थ्रू ट्रैवल करते रहेगा, एंड इट विल टेक अ लॉन्गर टाइम फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट एज वेल एज फॉर कम्युनिकेशन। इवन एज यू कैन सी यहाँ पे अगर ये केबल्स आपको एक्सटेंड करने हैं आप इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। इफ यू वांट टू रिमूव सम ऑफ द नेटवर्क उसको आप इजीली रिमूव कर सकते हो। सो दीज पर्टिकुलर थिंग्स कैन बी कंसिडर्ड एज एडवांटेजेस, बट हियर एज यू कैन सी कि अगर नोड देखो एक दूसरे के साथ आपने कनेक्ट तो कर लिए, यहाँ पे एक ही केबल है, अगर एक नोड यहाँ पे फेल भी होता है तो भी ये बाकी के नेटवर्क पे असर करने वाला नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नोड वहां से हट जाएगा। बट जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन तो आप केबलिंग एक सिंगल केबल के थ्रू कर रहे हो। सो द थिंग इज सिर्फ एक नोड वहाँ पे व्हाट वी कैन कॉल इट एज कि ये नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, बाकी के नोड्स विल बी एक्टिव, एंड जो भी आपका नेटवर्क है वो नेटवर्क आपका क्या रहेगा,
आप जो जो भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या कम्युनिकेशन जो कर रहे हो वो अफेक्ट नहीं होगा. So this particular things can be considered as advantages of bus network. If I talk about the disadvantages, तो यहाँ पे सबसे बड़ा disadvantage है that is about heavy network traffic, and this particular thing can slow down a bus network. So आपके बस नेटवर्क का जब आप यूज करते हो and when you try to do the communication, multiple nodes will be there, then definitely आपका जो what we can say ये जो कम्युनिकेशन टाइम है वो टाइम ज़्यादा लगेगा. Even in this type of network system, each connection between two cables weakens the electrical signal. क्योंकि हर बार जब आप कम्युनिकेशन सिग्नल सेंड करते हो ना, तो जितना वो ट्रैवल करेगा ना उतना ही वो सिग्नल ना वीक होते जाएगा. एंड फॉर दैट रीजन वी नीड टू यूज रिपीटर. आपको रिपीटर याद रहेगा, मैंने आपको बताया था इंटर नेटवर्किंग प्रोसेसर में से रिपीटर एक डिवाइस बताया था. वो रिपीटर क्या करता है, तो लॉन्गर डिस्टेंस पे जब आप कम्युनिकेशन करते हो तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स, सिग्नल्स आपके जो है ना वो वीक होते जाते हैं जितना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे उतना. सो वी नीड टू अगेन री एम्पलीफाई दोज पर्टिकुलर सिग्नल्स. तो उसके लिए आपको फिर रिपीटर यूज करना पड़ेगा. सो ये एक डिसएडवांटेज है आपके बस नेटवर्क का. एंड वन मोर इज देयर, दैट इज द मेन थिंग कि सर्वर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो सर्वर ही आपका गया तो डेफिनेटली पूरा का पूरा आपका आर्किटेक्चर जो है एंटायर नेटवर्क विल ब्रिंग डाउन. तो सर्वर अगर आपका गया तो बाकी पूरा नेटवर्क भी आपका डाउन हो जाएगा. ओके, सो दो टाइप के टोपोलॉजीज हमने देखे अभी तक. एक हमने देखा स्टार वाला, तो ये देख सकते हो आप शेप जो है ना आपके कनेक्शन का, उसी के हिसाब से उनको नाम दिए गए एंड उसी के हिसाब से उनके फीचर्स भी है. तो स्टार जहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड डिफरेंटली, दैट इज यूजिंग डिफरेंट केबल्स, बट इन बस टोपोलॉजी एज यू कैन सी यहाँ पे सिंगल केबल यूज किया है कनेक्टिविटी के लिए. नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जिसका नाम दिया है यहाँ पे रिंग और लूप नेटवर्क. तो ये जो है ना ये बस से ही आता है. कैसे, तो एज यू कैन सी आप बस का जो ऊपर देख रहे हो ना, तो दो जो नोड्स है कौन से केबल के, उनको केबल को जब आप कनेक्ट करोगे, दोनों केबल को दोनों एंड को अगर आप कनेक्ट कर देते हो ना एक दूसरे के साथ, देन यू कैन कॉल इट एज अ रिंग और लूप नेटवर्क. आई विल शो यू द डायग्राम. इट विल बी अपीयर लाइक अ रिंग. यस, यू कैन सी हियर. सो यहाँ पे हमने क्या किया, बस में जो वायर था ना उस वायर को हमने क्या किया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया. एंड दैट्स वाई अब यहाँ पे एंड टू एंड कम्युनिकेशन नहीं है. यहाँ पे आप देख सकते हो सर्कुलर वे में कम्युनिकेशन होगा. सो दिस टाइप ऑफ नेटवर्क दैट इज रिंग और लूप, ये जो नेटवर्क है ये कॉमनली हम लोग यूज करते हैं जहाँ पे आपको लैन इस्टेब्लिश करना है. सो कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी कंप्यूटर्स होते हैं वो बेसिकली रिंग टोपोलॉजी का यूज करते हैं, या फिर आपके बिल्डिंग में अगर आपका लैन कनेक्शन है तो वहाँ पे ये रिंग टोपोलॉजी यूज किया जाता है. सो बेसिकली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ बस नेटवर्क. तो बस का जो सिस्टम है ना बस टोपोलॉजी का, उसी का एक्सटेंडेड पार्ट है ये, जहाँ पे लास्ट कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट कंप्यूटर. सो यू कैन सी ऊपर हमने देखा. सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एंड्स जो है ना, इन दोनों एंड्स को आप सिर्फ क्या करते हो, कनेक्ट करते हो, सो दैट जो लास्ट वाला कंप्यूटर है वो फर्स्ट कंप्यूटर से क्या हो, कनेक्ट हो जाता है. ओके, सो इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी द नेटवर्क केबल पासेस फ्रॉम वन नोड टू अनदर अंटिल ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ रिंग. एंड दैट्स वाई इनका जो आर्किटेक्चर है ना वो रिंग शेप में दिखाई देता है, एंड इसीलिए इसको रिंग टोपोलॉजी बोला जाता है. Now here whenever we need to do the data communication, तो यहाँ पे डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिंक नहीं है, हर एक इसमें नहीं है. सो यू कैन सी whenever you want to pass a message, तो what will happen, server will pass the message to उसके नेबर्स. ये नेबरिंग जो है ना वहाँ पे मैसेज जाएगा. सो यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, एक तो आप क्लॉकवाइज सेट कर सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज सेट कर सकते हो. इन एनी वे आपका डेटा जो है वो ट्रैवल कर सकता है. सो फॉर एग्जांपल इफ दिस पर्टिकुलर सर्वर वांट्स टू सेंड द मैसेज, तो मे बी अब वो यहाँ से ऐसा क्लॉकवाइज ट्रैवल कर सकता है
या फिर उल्टा भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। सो फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन, ये जो सामने आपको स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा है उसमें S इज अ सर्वर, ये जो N दिख रहा है ये है 1, ये 2 एंड 3 ऐसे कंसिडर करो। एंड नाउ जस्ट इमेजिन कि S वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू थर्ड नंबर, इसको सेंड करना है। सो इसके पास दो ऑप्शन है, आइदर वो ऐसा पूरा घूम के आएगा, दैट इज 1 2 3 ऐसा घूम के आएगा, अदरवाइज व्हाट इट विल डू, उल्टा जाएगा, दैट इज डायरेक्टली तीन को डायरेक्टली वो मैसेज इंडिविजुअली सेंड कर सकता है। सो दिस इज द व्हाट वी कैन से एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। नाउ डेफिनेटली इसमें भी एडवांटेज आता है, दैट इज ले केबलिंग जो है इसमें कम लगता है। सो जो भी केबल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा यहाँ पे, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, देन डेफिनेटली यहाँ पे एक डिसएडवांटेज तो है, कौन सा, दैट इज अगर एक नोड या सर्वर जो भी या केबल कुछ भी अगर डैमेज होता है ना, तो पूरा का पूरा नेटवर्क डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्यों, आप देखो, क्योंकि यहाँ पे ऑल आर कनेक्टेड इन अ लूप। सो अगर एक साइड का भी कुछ, अगर एक नोड भी अगर डैमेज हो गया या सर्वर डैमेज हो गया या फिर केबल भी कहाँ से कट हो गया ना, तो आपका रिंग नेटवर्क ही चला जाएगा, नेटवर्क ही बंद हो जाएगा आपका। सो पूरा का पूरा नेटवर्क है ना वो डाउन हो जाएगा। सो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ रिंग और लूप टोपोलॉजी, this is the biggest disadvantage. Though we prefer to use this particular type of networking technology for any of the organization, LAN के लिए basically ये use किया जाता है, but we need to secure this particular thing, क्योंकि अगर एक सर्वर या फिर एक नोड या फिर एक केबल भी अगर कहाँ पे खराब हो गया या डैमेज हो गया ना, then पूरा का पूरा आपका नेटवर्क will collapse। एंड इवन अगर इसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द इंस्टॉलेशन रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंसिव भी है ये एज कम्पेयर टू बोथ, दैट इज बस एंड जो हमने स्टार टोपोलॉजी देखा, दोनों के कंपैरिजन में दिस इज मोस्ट एक्सपेंसिव। ओके, सो आई होप ये तीन जो अब तक हमारे टोपोलॉजीज हुए आपको समझे रहेंगे। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज नोन एज द मेश नेटवर्क। अब मेश का मीनिंग क्या है यहाँ पे, दैट इज रैंडमली कैसे भी जितने भी कंप्यूटर्स है उनको कनेक्ट करो। सो इट इज एक्चुअली अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स यूजिंग टेलीकम्युनिकेशन लिंक, जैसे चाहिए वैसे एक दूसरे को कनेक्ट करो। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मेश नेटवर्क और मेश टोपोलॉजी। जस्ट द थिंग इज, आपको जिसको जहाँ पे कैसे भी कनेक्ट करना है वैसे करो। जस्ट द थिंग इज यू नीड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मेश नेटवर्क और मेश टोपोलॉजी। सो इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ईच कंप्यूटर एंड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ईच अदर। सो यहाँ पे हर जन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। So because of that, point to point connection is established, and because of that, as you can see, whenever you want to perform any of the data communication, then what will happen here? So क्या होगा, एक तो आप डायरेक्टली मैसेज भी सेंड कर सकते हो किसी भी नोड को, या फिर वाया करके भी आप मैसेज सेंड कर सकते हो, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो जस्ट इमेजिन, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसमें मैं नंबरिंग दे रहा हूँ। जस्ट इमेजिन ऊपर के जो दो है वो 1 2, मिडल वाला जो है वो 3 एंड लास्ट के दो है वो 4 एंड 5। तो जस्ट इमेजिन कि 1 को मैसेज सेंड करना है 3 को। सो 1 wants to send message to, sorry 3 नहीं 4 को, 1 wants to send message to 4। तो how many possible ways are there? तो as you can see, देखो 1 to 4 ये डायरेक्ट कनेक्शन इज अवेलेबल, 1 2 3 4 ये भी एक कनेक्शन है, 1 3 4 ये भी एक कनेक्शन है, 1 3 2 5 4 ये भी एक कनेक्शन है। तो मल्टीपल कनेक्शंस आर देयर,
एंड जिनका यूज करके किसी न किसी एक कनेक्शन से आपका मैसेज डेफिनेटली पास होगा ही होगा. So this is what we can say advantage from mesh network point of view, because यहाँ पे direct connection is available and because of direct connection यहाँ पे communication के लिए ज़्यादा time नहीं लगेगा. Okay, so this can be considered as one of the advantage, but again यहाँ पे disadvantage तो है ही. आपको ये डायग्राम से ही दिखाई देगा सबसे पहला disadvantage क्या, क्योंकि यहाँ पे केबल्स देखो कितने लग रहे हैं. सो केबल्स इतने हैं तो ऑब्वियसली इसका कॉस्ट क्या रहेगा, ज़्यादा ही रहेगा. एंड दिखने में भी देखो कितना कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्ट किए, कौन सा वायर कहाँ पे जा रहा है कुछ समझ नहीं रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल. इंस्टॉलेशन जो है ना इसका, ये बहुत डिफिकल्ट होता है. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ मेश नेटवर्क, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेश नेटवर्क. So in today's topic what we have seen four important topologies, network topology, that is star topology, bus topology, then ring topology, and finally we have seen that is about mesh topology. Okay, so I hope ये network topology का जो concept है ये clear हुआ रहेगा आपको. Yes, जल्दी बोलो. Yes or no? Okay, chalo. Now quickly I will take this particular topic. Now this topic is basically regarding the data transmission. Now the thing is, जैसे अभी हमने टोपोलॉजीज के बारे में बात किया, नेटवर्किंग के बारे में बात किया, तो इट इज क्लियर दैट ये नेटवर्क वगैरह हम लोग क्यों इस्टेब्लिश कर रहे हैं. व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट. द मेन पर्पस इज व्हाट, दैट इज we want to send a message from sender to receiver, as simple as that. तो जो डेटा कम्युनिकेशन का जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि जब आपको कम्युनिकेशन करना है तो 5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स वी हैव सीन, दैट इज सेंडर होता है, रिसीवर होता है, चैनल होता है, मीडियम होता है, एंड मैसेज होता है, एंड प्रोटोकॉल्स आर आल्सो देयर. सो वहाँ पे हमने देखा था कि यस वी डू द डेटा ट्रांसमिशन. तो जब भी सेंडर वांट्स टू कम्युनिकेट विद द रिसीवर, देन डेफिनेटली सेंडर नीड्स टू सेंड द मैसेज. तो ये जो मैसेज सेंड करते हो ना आप, तो वो मैसेज कैसे आप सेंड करते हो, तो उसके भी कुछ ना कुछ टाइप्स रहेंगे. सो यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन. तो देयर आर बेसिकली 3 to 4 different types of data transmission. As you can see, the first one, as they have given, सीरियल ट्रांसमिशन. सीरियल मतलब सीरियल ऑर्डर में आप डेटा ट्रांसमिट करोगे. तो जो भी डेटा है, जो भी मैसेज है, एक एक बीट या उसका एक एक बाइट जो है वो आप सिंगल पाथ के थ्रू आप जो रिसीवर रहता है उसको सीरियल ऑर्डर में सेंड करोगे. सो फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है माउस और मॉडेम. ठीक है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. जस्ट इमेजिन कि हम अभी फॉर एग्जांपल हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, देख ठीक है. अब यस फ़ोन पे बात कर रहे हैं, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पैरेलल ट्रांसमिशन आल्सो. ओके, बट सीरियल ट्रांसमिशन में अभी मैं आपसे कुछ बात कर रहा हूँ, तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है. वो डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होने के बाद उसके जो बाइट्स है, उसके जो पैकेट्स है, मेरे साउंड के जो आप लिसन कर रहे हो अभी, तो उसके जो पैकेट्स है वो हर एक बाइट को ट्रांसफर किया जाता है थ्रू द कम्युनिकेशन मीडिया, एंड देन वो आपके तरफ पहुंच रहा है. फॉर दैट रीजन इट इज नोन एज अ सीरियल ट्रांसमिशन. सो जस्ट कीप इन माइंड, इन सीरियल ट्रांसमिशन a single bit of each byte is sent along a single path, one after another, and that's why you can see वहाँ पे डायग्राम में भी दिख रहा है 0 1 0 0 0 0 1. सो जस्ट कीप इन माइंड कि यहाँ पे कैसे होगा कि जो भी आपका बाइट है उसका पहला पार्ट है 1, तो पहला 1 जाएगा, देन 0, देन 0 0 0, देन 1, एंड देन फाइनली 0. तो जिस ऑर्डर में आप बोल रहे हो या जिस ऑर्डर में आप मैसेज सेंड कर रहे हो उसी सीरियल ऑर्डर में डेटा ट्रांसमिट होगा, एंड वो भी 1 बिट ट्रांसफर्ड एट अ टाइम.
and because of that this type of transmission is known as serial transmission. Now इसी के जैसा और भी एक है, that is about the parallel transmission. So parallel transmission में क्या होता है आप देख सकते हो, parallelly multiple number of bytes or characters we can transmit to the receiver simultaneously. So जरूरी नहीं है यहाँ पे कि एक एक बिट आप ट्रांसमिट करो, you can transmit directly a byte, पूरा का पूरा बाइट जो होता है ना वो आप ट्रांसफर कर सकते हो एट ए टाइम. सो एज यू कैन सी ऊपर का एंड नीचे का दैट इज सीरियल ट्रांसमिशन एंड ये जो पैरेलल ट्रांसमिशन है दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है. सीरियल में एक एक आप सीरियली सेंड करते रहते हो, बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे जो कनेक्शन है कम्युनिकेशन जो है ना उसको ना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा. एंड अगर यहाँ पे देखोगे तो आप देखो सेंडर एंड रिसीवर के बीच में मल्टीपल साइमल्टेनियसली आप ट्रांसमिशन कर रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो ट्रांसमिशन है ये क्या होगा, फास्टर होगा एज कम्पेयर टू सीरियल ट्रांसमिशन. सो यहाँ पे एग्जांपल्स जस्ट कीप इन माइंड. सीरियल ट्रांसमिशन मतलब माउस का क्लिक वगैरह जो आप करते हो ना, सो वो सीरियल ट्रांसमिशन होता है, उसका जो इंस्ट्रक्शन पास होता है वो सीरियल होता है. एंड प्रिंटर का अगर आप देखोगे, क्योंकि प्रिंटर में देखो प्रिंटर में सिर्फ एक थोड़ी एक साथ, हाँ प्रिंटर में भी अलग अलग टाइप्स है, लेकिन आजकल के जो प्रिंटर है इंकजेट, डेस्कजेट, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइमल्टेनियसली व्हाट द इंस्ट्रक्शन जो भी है, कलर मल्टीपल कलर्स आर देयर, या जो भी आपको प्रिंट करना है तो एक साथ वो सब कुछ एक साथ प्रिंट होता है. That means we are transferring what we can say number of bytes at a single time. So this type of parallel transmission जो है, this type of transmission is relatively faster as compared to single transmission. Okay. Next one is about synchronous transmission. अब यहाँ पे synchronous तो एक sync में मैसेज जाएगा. ओके. सो यहाँ पे bytes are transmitted at fixed rate. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं ट्रांसमिट करते वक्त पहले मैंने 2 बाइट सेंड किए, बाद में फिर 4 बाइट सेंड किए, बाद में 3 बाइट, ऐसा नहीं है. यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है ना वो सेम रहेगा थ्रू आउट, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज नोन एज सिंक्रोनस. एक सिंक्रोनाइजेशन में रहेगा वो. ओके. सो यहाँ पे हमेशा वट एवर नंबर ऑफ बाइट्स यू आर गोइंग टू ट्रांसमिट, they will be transmitted at fixed rate with a special byte at the beginning and special byte at the end. So the sender and receiver are using same clock signals. तो यहाँ पे synchronization होगा दोनों में, मतलब सेंडर जो सेंड कर रहा है उसी रेट पे रिसीवर भी उसको एक्सेप्ट करते रहेगा, and that's why this is known as a synchronous transmission. बट इफ वी टॉक अबाउट असynchronous ट्रांसमिशन तो यहाँ पे दोनों के बीच में ना इतना रैपो नहीं रहेगा. सो बाइट्स आर ट्रांसमिटेड, दो द बाइट्स आर ट्रांसमिटेड एट फिक्स रेट, बट हियर व्हाट विल हैपन, यहाँ पे जो भी व्हाट वी कैन कॉल इट एज, जब वो एक्सेप्ट करने का एंड सेंड करने का रेट है ना वो फ्लक्चुएट हो सकता है. So as you can see here, even beginning and ending में special bit is there. तो जो synchronous में वो same चीज़ है यहाँ पे, but it uses a set of start that is 0 and stop bit. तो start bit and stop bit वो use करता है before and after each byte of data transmitted. तो ये एक what we can say additional part है. तो ठीक है, यहाँ पे स्पेशल बिट तो यूज होता है, रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो भी फिक्स है, बट उसके साथ वो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट हर ट्रांसमिशन, हर बाइट सेंड करने के बाद वो भेजता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट व्हाट वी कैन से कि असिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है, दो इट लुक्स लाइक कि इसमें कुछ मतलब सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, सो ऐसा कुछ तो लग रहा है, बट द थिंग इज यहाँ पे ये जो आप स्टार्ट एंड स्टॉप बिट सेंड करते हो ना, बिकॉज ऑफ दैट ये जो एडिशनल और एक कवरेज है आपके सिग्नल्स ट्रांसमिशन के लिए, बिकॉज ऑफ दैट इट इज मोर रिलायबल, बट डेफिनेटली इट इज स्लो. सो देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जब आप सेंड करते हो ओवर द नेटवर्क तब आप इसको यूज नहीं करते. ओके. सो आई होप ये जो टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन जो है
वो आपको समझा रहेगा. Yes. So we will quickly take the attendance, I guess. We will stop here.